Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. As you know कि अपने पिछले लेक्चर में हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स का इंट्रोडक्शन लिया था और चैप्टर नंबर 1 को हमने जो है वो अकम्प्लिश किया था। लेकिन चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 22 में हमारी जो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज थी वो अभी रहती थी। So dear students, in our this lecture, we are going to discuss the exercise, I mean short questions of chapter number 1. So please बोर्ड पे खास तवज्जो रखिएगा। So आइए चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे एक्सरसाइज मौजूद है, आप देखते जाइए, समझते जाइए कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। So first question है, how did Chips measure time? बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में इसका जिक्र था। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कैसे चिप्स जो है वो अपना वक्त जो है वो मैयर करता था। तो आइए आंसर देखते हैं। Like an old sea captain, Chips measured time by the signals of the past, for he lived at Mrs. Wicket's just across the road from the school. आंसर क्लियर है। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ में यह बात तहरीर शुदा थी। सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। What was the problem with Mr. Chips as diagnosed by Dr. Merivale? ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। What did Chips doctor say? What did Chips doctor say about him? So आंसर क्या है? According to Dr. Merivale, nothing was wrong with Mr. Chips. It was only anhedonia. Anhedonia, agedness, बुढ़ापा. That he thought was the most fatal disease. He added that his chest also put strain on his heart. अगर देखा जाए तो ये जो आंसर है ये चैप्टर नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 3 से लिया गया है। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट वाज नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर एंड हाउ ऑफन डिड ही विजिट चिप्स? अभी अभी डिस्कस हुआ तो यकीनन आसान बात है। आंसर क्या है? डॉक्टर मैरीवेल वाज चिप्स डॉक्टर। He came fortnightly to check up Chips and gave useful pieces of advice about his health. So question number 4. What advice did Dr. Merivale give to Mrs. Wicket about Chips? आसान है, तो क्या कहता था, क्या एडवाइस देता था? आइए देखते हैं। Merivale advised her to look after him because his chest put a strain on his heart when he had grown old. So dear students, बहुत ही easy answers हैं। इंशाल्लाह आप इन्हें समझते जाएंगे तो तैयार भी होते जाएंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Why did Chips like summer? इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि क्यों उसे गर्मी का मौसम पसंद था। सो आइए आंसर देखते हैं। Chips liked summer because it was his favorite season. He did not like winter because he had bronchitis. अभी अभी हमने बात की है कि चिप्स की जो चेस्ट है वो उसके दिल पे दबाव डालती थी, तो इसका मतलब है उसे कौन सी बीमारी थी? ब्रोंकाइटिस। ये सांस का जो मसला होता है उसे कहा जाता है, एस्थमा भी कह सकते हैं। And in winter, his chest put a strain on his heart when eastern winds blew over the fenlands. So question number 6 पे चलते हैं। Why did Chips not like Melbury School? और ये very important short question है, इसके आंसर को तवज्जो दीजिए। Chips taught at Melbury School from 1869 to 1870. He did not like the school because he had been dragged there a good deal.
he could not maintain discipline in his class, so he left it and joined Brookfield. ये बिल्कुल आसान बात है, आप समझ गए होंगे. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. Who was Mr. Weatherby? मिस्टर वेदरबी, हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था कि ये कौन थे, तो आइए आंसर डिस्कस करते हैं. मिस्टर वेदरबी, a fatherly and courteous character, was the headmaster of the school in 1870. He interviewed Mr. Chapes and gave him some useful pieces of advice. Question number 8. What kind of person or head Mr. Weatherby was? Mr. Weatherby किस तरह का हेडमास्टर था, पर्सन था, कुछ तो ऊपर भी बात डिस्कस हो गई है, तो आइए यहां फिर इसे डिस्कस करते हैं. Mr. Weatherby was a kind and fatherly person. He was very courteous. He gave some useful pieces of advice to Mr. Chapes for his betterment as a teacher. So, first interview में मिस्टर वेदरबी जो है वो मिस्टर चिप्स को एडवाइस करता है, तो इसका मतलब है वो काइंड और जेंटल क्या है, एक करेक्टर है, फादरली करेक्टर है. सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. हाउ डिड चिप्स लुक इन हिज यूथ? बिल्कुल, जब चिप्स अपनी पहली प्रेप क्लास पढ़ाने जाता है तो वहां उसकी अपीयरेंस के बारे में कुछ लिखा है, तो आइए इसे समझते हैं कि हाउ डिड चिप्स लुक इन हिज यूथ. सो आंसर क्या है? ही वॉज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन्ड यंग मैन. फेयर कॉम्प्लेक्शन, साफ सुथरे रंग वाला, ठीक है. सो ही हैड साइड विस्कर्स, वो क्या बड़ी बड़ी उसने कलमें रखी हुई थी, एंड हाई कॉलर्स, और किसी हीरो की तरह उसने कॉलर भी ऊपर किए हुए थे. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फैशन ऑफ हिज एज. उस दौर के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक उसने ड्रेस पहना हुआ था और फैशन अडॉप्ट किया हुआ था. सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. हाउ डिड मिस्टर वेदरबी एडवाइज मिस्टर चिप्स? तो ये कुछ कुछ तो पहले डिस्कस हुआ, लेकिन आइए इसकी तफसील देखते हैं कि कैसे मिस्टर वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को एडवाइज किया था. Mr. Weatherby gave very useful pieces of advice to Mr. Chips regarding maintaining discipline in his class. He advised him to take up का मतलब adopt, a firm attitude, सख्त रवैया, firm, strict, attitude, रवैया, from the beginning, and not to let anyone play tricks with him. He also advised him to serve Brookfield with devotion. आपको याद आ रहा है, टेक्स्ट आपने खूब पढ़ी होगी, अच्छी तरह पढ़ी है, तो डेफिनेटली ये आपको बातें समझ आ रही हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं. हाउ डिड मिस्टर चिप्स टेक हिज फर्स्ट क्लास? वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे उसने अपनी पहली क्लास ली थी. सो आइए देखते हैं. इट प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम बिकॉज द हॉल वॉज फुल ऑफ 500 mischievous boys ready to attack him. He assumed a scowl. Scowl का मतलब होता है तेवरी, ठीक है, गुस्से से भरी हुई जो क्या है, लुक है, निगाह है. सो उसने तेवरी को अपनाया हुआ था, क्या करने के लिए? टू हाइड हिज नर्वसनेस, अपनी घबराहट को छुपाने के लिए. Somebody dropped a desk lid. याद है वो कौन था? कॉले. Yes, you're very intelligent. So somebody dropped a desk lid, और क्या हुआ? Chips quickly caught and punished him. So वाकया आपके जहन में उभर आया होगा, because you are very thoughtful, you are good observant. So आगे चलते हैं. Question number 12. What did Chips say when the grandson of the first Collie arrived at Brookfield? लो जी, कॉले का जिक्र आ गया है. सो आइए देखते हैं कि जब ग्रैंडसन ऑफ कॉले ब्रुकफील्ड में आया तो चिप्स ने क्या कहा था. He said, क्या कहा था? तो जो दीजिए. You are a splendid example of inherited traditions. Your grandfather could never learn ablative absolute.
He was a stupid fellow. Your father was not much better, but I believe that you are the biggest fool of the lot. याद आया? इस पे खूब कहा लगा था कि उसने उसे क्या कहा कि तुम मारूसी रवायात की मिसाल हो, और साथ ही कहा कि तुम्हारे दादा की भी खामियां ये थी, तुम्हारे वालिद की भी, और तुम उनमें से सबसे बड़े क्या हो? अहमक हो। सो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। Who was Kole? Why and how did Chips punish him? Very important question. Kole was the first boy punished by Chips because he had dropped the desk lid while Chips was taking his first class. Chips asked him to write 100 lines as a punishment. He became an alderman of London. Alderman का मतलब क्या था? मैजिस्ट्रेट कह सकते हैं, इसे रईस शहर कहा जाता है। He became an alderman of London and a baronet later. Baronet क्या होता है? ये छोटा नवाब होता है। सो आसान आंसर है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Why did Chips keep the Brookfield time instead of the Greenwich time? Again, chapter number 1, Goodbye Mr. Chips के फर्स्ट पैराग्राफ में से इस तरह से भी ये सवाल आ सकता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। He kept the Brookfield and not the Greenwich time. इंग्लिस्तान का जो टाइम था वो उसको नहीं, बल्कि ब्रूकफील्ड की घंटियों और उसके टाइम टेबल को वो फॉलो करता था। Because he had timed the activities of his life according to the bells of Brookfield as he lived at Mrs. Wickett's house across the road near the school. सो आसान बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हाउ डिड ही एंड हिज डेज एक्टिविटीज एट मिसेस विकेट्स? ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल? तो ये चैप्टर नंबर 1 और उसके पैराग्राफ नंबर 2 में आंसर है। सो आइए इसको समझते हैं कि कैसे वो अपनी डेज एक्टिविटीज को एंड करता था। He wound up the clock. Wound up का मतलब चाबी देना, सेट करना। वो अपने क्लॉक को चाबी दिया करता था। After the last bell, put the wire guard in front of the fire. Wire guard क्या है? हिफाजती जाली, आग के सामने जो रखता था। Turned off the gas, गैस को बंद कर देता था। And carried a detective novel. Detective novel, जासूसी नॉवल, to bed, और बिस्तर पर एक जासूसी नॉवल ले जाता था। That was how he concluded his day's activities. और इसी तरह अपने दिन भर की सरगर्मियों का इख्तिताम करता था। Question number 16. Describe the day of the preliminary interview of Mr. Chips. Very important question. और यकीनन आपको याद भी होगा। You are very thoughtful. So आइए देखते हैं। It was a sunny day of July with the air full of flower scents and the plick-plock of cricket on the field could also be heard. Brookfield was playing against Burnhurst School. So मैच चल रहा था और सनी जुलाई था और हवा जो थी वो फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर थी। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबी। अब ये जो है ये मिलता जुलता सवाल है, ऊपर हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। मिस्टर चिप्स हैड अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबी who was an old man then and remained very courteous and fatherly to Mr. Chips. He gave very useful pieces of advice to Mr. Chips about improving the discipline of his class. Important तो है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वेरी इजी। सो लास्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। Why was 1870 easy to remember? चैप्टर नंबर 1 के तकरीबन चौथे पैराग्राफ में ये बात लिखी है, तो आइए देखते हैं कि क्यों 1870 को याद करना आसान था। Chips joined Brookfield in 1870
and it was easy to remember the year because of Franco-Prussian War. Franco the French, Prussian the German. तो फ्रांसीसियों और जर्मनों की आपस में जंग भी छिड़ी हुई थी, सो इसलिए भी इसे याद करना आसान था. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को हमने डिस्कस कर लिया. इंशाल्लाह इन आवर कमिंग लेक्चर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट ले रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.